Hello, today I would like to discuss inner product spaces. So we know that the definition of vector space. First of all, we'll revise the definition of vector space. And in this definition, V is a non-empty set and F is any field. And if this algebraic structure satisfy conditions, then it is called as a vector space. Now, here F is a field. So we can take any field, but the very known fields are field of real numbers and field of complex numbers. Is it? So what I am doing here, I am considering the field of real numbers and I am considering a vector space that is a very famous and very popular, that is Euclidean R3 space. So R3 means having 3 tuples and the entries of the tuples are of real numbers. So when we consider F is a real field and the vector space is called as a real vector space, and when we consider the field as a complex field, then that vector space is called as a complex vector space. So note here, complex vector space means whatever vector you are considering, the component of the vectors are coming from the field complex. And in the real vector space, the vector, whatever you can consider, the components of that vectors are coming from the real field. Alright. And now we would like to discuss the definition of dot product. So I am considering the vector space R3 here, and these are the two vectors from the vector space whose components are x1, x2, x3, and these components are coming from real field, and these are also from R. Now we know that the dot product of such a two vectors are defined like this: component wise multiplication and then addition. So this is already we have studied in physics also, because in physics so many physical quantities are expressed in terms of vectors. So here the basic thing is why we are studying dot product of vectors. So using the dot product, the first thing is, using the dot product you can calculate the length of that vector, and using the dot product you can calculate the angle between two vectors. So if we define dot product of vectors in R3 like this, then what it actually gives, what are the properties? So before stated properties we will see something. So what happens when we will consider this definition of a dot product? So suppose U is here given, that is component wise x1, x2, x3, and now according to previous definition I want to find dot product of U with itself. So according to definition we can write x1 into x1 plus x2 into x2 plus x3 into x3. And since these are the real numbers, we can take its square, x1 square plus x2 square plus x3 square. So this is the dot product of U with itself. Now all the three terms are in terms of square, and square of any real number is what? Positive. So the first term is positive, second term is also positive, third term is also positive. So addition is positive, so it is greater than 0. What happens when x1 itself 0, x2 itself 0, x3 itself 0, then we'll get equal to 0. So it may be this addition may be greater than or equal to 0. So this is one of the property of the dot product, right? So what happens, suppose I am writing U dot V. So this is x1 y1 plus x2 y2 plus x3 y3 as per the previous definition. So instead of this I am writing y1 x1
because these are the real numbers and the commutative law holds in the real number, therefore we can write like this. तो हमने ऐसा लिखा. अब इसको हम y1, y2, y3 ये वेक्टर को पहले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट x1, x2, x3, and this is the dot product of v into u. So we have started with u dot v and now we reached at v dot u. That means the dot product is commutative. So this is one of the property of dot product. Now, if I am considering a linear combination of two vectors like this and taking dot product with third vector, then what should we do? तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं अल्फा u का डॉट प्रोडक्ट w के साथ प्लस बीटा v का डॉट प्रोडक्ट w के साथ. तो ये जो सारे प्रॉपर्टीज है ये डॉट प्रोडक्ट्स के हैं. तो डॉट प्रोडक्ट जो हमने R3 पे डिफाइन किया था, जो ऑलरेडी हम जानते हैं उसके बारे में, तो ये यहाँ इस तरीके से वर्क कर रहा है. लेकिन मेरा कहना कुछ ऐसा है कि ये जो डेफिनेशन थी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये R3 पे वैलिड हो गई. उसके ये प्रॉपर्टीज भी हमने देख ली कि ये प्रॉपर्टीज होने हैं. तो अगर ये डेफिनेशन हम कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस पे अप्लाई करेंगे तो क्या ये यही प्रॉपर्टी देगी? तो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस में वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फील्ड से आते हैं. तो इसलिए हमने क्या किया, एक वेक्टर कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस से लिया जिसमें कंपोनेंट्स है 1, i इज इमेजिनरी नंबर और 0. और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस का मेंबर है, इसके एंट्रीज आर फ्रॉम complex field. So 1 is a real number and every real number is a complex number. I is imaginary number, so it is a complex. तो ये सारे complex numbers हैं. और अब हमें देखना है कि जो पिछले डेफिनेशन ने जो प्रॉपर्टीज हमको दिए थे 3, क्या वो सभी के सभी प्रॉपर्टीज इस वेक्टर के लिए भी कंसिस्टेंट होते हैं? तो हमने क्या किया, u डॉट u लिया इस वेक्टर का. अब देखिए फर्स्ट कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन 1 आ गया, सेकंड का कंपोनेंट i स्क्वायर आ गया जिसकी वैल्यू होती है -1, और जब आप ऐड करोगे तो आंसर आ गया 0. अब आपका जो वेक्टर था वो तो 0 वेक्टर था नहीं, लेकिन फिर भी उसका डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ 0 आ गया. अगर आप पिछले डेफिनेशन में देखेंगे तो यहाँ जो देखिए यहाँ डॉट प्रोडक्ट 0 इफ एंड ओनली इफ u इक्वल टू 0. क्या मीनिंग होता है इसका? इसका मीनिंग ये होता है कि अगर किसी का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है इटसेल्फ, तो वो इटसेल्फ 0 होना चाहिए, या वो 0 है तो उसका डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ 0 आएगा. तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव अगर आप लेते हो तो u अगर नॉन जीरो रहेगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ भी नॉन जीरो रहेगा. तो दिस इज द प्रॉपर्टी, मीनिंग ऑफ द प्रॉपर्टी. मतलब ये नॉन जीरो रहेगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ भी नॉन जीरो ही आना चाहिए. ये पिछले डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है. अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर हमने जो u लिया था वो तो नॉन जीरो है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ क्या आना चाहिए, नॉन जीरो ही आना चाहिए, लेकिन आ रहा है 0. मतलब ये प्रॉपर्टी वो डेफिनेशन जो हमने पिछले इसमें डिफाइन की थी R3 में, वो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस के लिए सुटेबल नहीं है ना. इसलिए हमको एक नई डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट की डिफाइन करनी होगी, जो डेफिनेशन वेक्टर कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस के लिए भी वैलिड होगी और वही डेफिनेशन रियल वेक्टर स्पेस के लिए भी वैलिड होगी. तो इसका मतलब हम उस डेफिनेशन को जनरलाइज कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं. ठीक है. तो अब हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स के लिए ये ऐसा डिफाइन किया, क्योंकि ये कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स फील्ड के होते हैं तो हम उसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं. तो यहाँ ये बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट ऑफ y1, कॉन्जुगेट ऑफ y2. तो अब ये देखिए, आप बोलेंगे कि ये डेफिनेशन पिछले के साथ कैसे कंसिस्टेंट करेगी. अगर पिछले इसमें ये डेफिनेशन यूज करते हो तो R3 का जो y है, y1 है, वो रियल नंबर रहेगा, और रियल नंबर का कॉन्जुगेट खुद रियल नंबर ही रहता है जो है वो. तो इसलिए ये रियल नंबर पे वही आंसर देगा जो पीछे
पिछले डेफिनेशन में हमने दिया था, तो कंसिस्टेंट हो रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, ये तो R3 पे भी कंसिस्टेंट हो रही है, तो वो सारे कंडीशन जो R3 पे 3 थे वो तो यहाँ फुलफिल होंगे, लेकिन क्या वही कंडीशन, वही प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस के लिए इस डेफिनेशन को लेकर हम कंसिस्टेंट कर पाते हैं या नहीं? तो इसमें हम देखते हैं कि यहां पर है ये इसके प्रॉपर्टीज। अब देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन जो थी डॉट प्रोडक्ट की, उसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट होल्ड होता था। यहां पर वो होगा नहीं, यहां पर कुछ लॉस होगा हमारा। कम्यूटेटिव तो हो रहा है बट वो इन टर्म्स ऑफ कॉन्जुगेट हो रहा है। तो यहां पर आप u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u एंड इट्स अ कॉन्जुगेट। अगर इसको आप R3 में लेके जाते हो तो ये जो है ये रियल नंबर रहेगा, तो रियल नंबर रहेगा तो ये जो आपका बार है उसका कोई मतलब नहीं रहता है, तो वो उस केस में ये दोनों कम्यूटेटिव हो जाएंगे। लेकिन इन जनरल इसको आपको ऐसा लिखना होगा, ठीक है। और उसका लेंथ जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और u इक्वल टू 0 रहेगा तो लेंथ 0 रहेगा, और लेंथ अगर किसी का 0 है तो इटसेल्फ 0 होगा। और ये दो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। इसमें एक एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसलिए है क्योंकि आपका जो लीनियर कॉम्बिनेशन सेकंड पोजीशन पे आया तो आप u डॉट अल्फा v लिखेंगे, और ये अल्फा सेकंड वेक्टर को अटैच है, तो उसको जब आप आउटसाइड द डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वो उसका कॉन्जुगेट होता है। फर्स्ट पोजीशन का अल्फा बाहर लेते हो तो वो एज इट इज बाहर आएगा, लेकिन सेकंड पोजीशन का जो स्केलर मल्टीप्लायर है उसको आप बाहर लेंगे तो वो कॉन्जुगेट होके बाहर आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज एज इट इज कंसिस्टेंट हो रहे हैं हमारे नए डेफिनेशन के लिए, जो कि कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस पे लागू होती है और R3 पे भी लागू होती है। तो यहां से ये आइडिया आया कि इनर प्रोडक्ट वेक्टर स्पेस के लिए डिफाइन करना जरूरी है। अब ये तो हमने फील्ड लिए थे और वेक्टर स्पेस को इन टर्म्स ऑफ फील्ड लिखा था, यहां तक ठीक है। लेकिन कभी कभार वेक्टर स्पेस में फंक्शंस होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। अब दो वेक्टर लिए हमने जो कि फंक्शंस है, उसको कंपोनेंट्स नहीं रहते, तो कंपोनेंट्स नहीं है तो आपने जो अभी डिफाइन किया था डॉट प्रोडक्ट x1 y1 प्लस x2 y2, वो आप दो फंक्शन के डॉट प्रोडक्ट में डिफाइन नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड टू डिफाइन अ जनरल डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर एनी वेक्टर स्पेस। तो इसलिए फिर ये नया इनर प्रोडक्ट के नाम से ये डेफिनेशन डिफाइन की गई, और डॉट प्रोडक्ट इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ इनर प्रोडक्ट। तो इनर प्रोडक्ट समथिंग जनरल वे में हम उसको ले सकते हैं कि हाउ टू मेक द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फ्रॉम एनी वेक्टर स्पेस। तो कैसे डिफाइन होगा इनर प्रोडक्ट? तो यही कंडीशंस, यही जो प्रॉपर्टीज है, यही प्रॉपर्टीज जो फंक्शन फुलफिल करेगा वो फंक्शन को हम इनर प्रोडक्ट बोलेंगे, और जो वेक्टर स्पेस अलोंग विद दैट इनर प्रोडक्ट होता है उस वेक्टर स्पेस को हम इनर प्रोडक्ट स्पेस बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन को हम लिखेंगे अभी इनर प्रोडक्ट की। देखिए, V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, एंड अ रूल you can say is said to be inner product only if that rule will satisfy these conditions. Number 1, देखिए ये तो वो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस जो हमने प्रॉपर्टीज देखे थे उसके जैसी है। इसका नोटेशन कभी कभार ऐसा होता है ब्रैकेट वाला, या कभी कभार इनर प्रोडक्ट को ऐसा भी लिखा जाता है लाइक दिस। तो ये कॉन्जुगेट कम्यूटेटिव हो रहा है। इनर प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विथ इटसेल्फ नॉन नेगेटिव होना चाहिए, और इनर प्रोडक्ट किसी वेक्टर का खुद के साथ 0 आता है तो वेक्टर इटसेल्फ 0। ये सभी वही प्रॉपर्टीज है। तो जो रूल, जो फंक्शन जो भी डिफाइन किया है आपने, वो फंक्शन अगर ये 3 प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है तो वो फंक्शन उस वेक्टर स्पेस के लिए इनर प्रोडक्ट कहलाएगा।
and the vector space along with inner product is called as a inner product space. मतलब आप inner product के ये properties को वहां enjoy कर सकते हैं. Now let us take one example कि एक vector space है fn नाम का. fn मतलब f is a field और ऊपर ये n है, मतलब आपको इसके एलिमेंट ऐसे लेने होंगे n ट्यूपल्स में. और ये u है, ये दो वेक्टर है इसके, और उसका जो इनर प्रोडक्ट तो हम नहीं बोलेंगे, उसका प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन किया है लाइक दिस. अब हमें पता करना है कि ये प्रोडक्ट क्या इनर प्रोडक्ट है या नहीं. अब इस प्रोडक्ट को इनर प्रोडक्ट अगर कहना है तो उसने कितने कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए? 3. तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? नंबर 1 कि आपको ये प्रूव करके बताना पड़ेगा कि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू विथ कॉन्जुगेट. ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, u कॉमा वी इनर प्रोडक्ट. और कैसी डेफिनेशन आपको दिया है ऐसे, तो क्या है ये डेफिनेशन में कि फर्स्ट वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर. मतलब इसका पहला इसके पहले का कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका दूसरा इसके दूसरे का कॉन्जुगेट फिर मल्टीप्लिकेशन एंड लाइक दैट. तो ये हो जाएगा आपका अल्फा 1 बीटा 1 बार प्लस अल्फा 2 बीटा 2 बार, and in this fashion last term is alpha n beta n bar. अब हम कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में क्या है? कॉन्जुगेट ये वाला, और यहाँ है पहला वेक्टर v. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको पहला कंपोनेंट v का लेना होगा और दूसरे का कॉन्जुगेट लेना होगा. दूसरा u है, u के कंपोनेंट्स लाइक दिस अल्फा में है, तो ये हम ऐसा लिखेंगे. ठीक है, ये लास्ट है बीटा n अल्फा n बार. कॉन्जुगेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे टर्म्स के ऊपर, तो बीटा 1 बार इंटू अल्फा 1 डबल बार, ये 2 बार हो जाएंगे, बीटा 2 बार इंटू अल्फा 2 डबल बार, एंड इन दिस फैशन वी कैन राइट बीटा n बार अल्फा n डबल बार. कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज द ओरिजिनल एलिमेंट, तो इसको हम लिखते हैं बीटा 1 बार इंटू अल्फा 1 प्लस बीटा 2 बार इंटू अल्फा 2 एंड लास्ट एलिमेंट बीटा n बार अल्फा n. नाउ ये जो दो चीजें हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं या फील्ड के मेंबर्स है. फील्ड कौन सा है मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा तो उसमें कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि फील्ड के हैं तो कम्यूटेटिव लॉ तो वैलिड होगा, इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो. अब आपने जब ऐसा लिखा इसको अल्फा एन बीटा एन बार, तो आप देखिए कि ये और ये, इसको हम एक नंबर देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं. फ्रॉम 1 एंड 2 बोथ साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इज नथिंग बट कॉन्जुगेट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू. तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई इस डेफिनेशन ने कर दी. अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं. सेकंड कंडीशन में हमको प्रूव करना है टू शो दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विथ इटसेल्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हम इनर प्रोडक्ट निकालते हैं u का u के साथ. तो व्हाट इज द डेफिनेशन गिवन टू u? तो ये पहले वेक्टर का पहला कंपोनेंट, दूसरे वेक्टर का पहला कंपोनेंट विथ बार प्लस अल्फा 2 बार प्लस अल्फा n अल्फा n बार. अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, क्योंकि मुझे पता नहीं है फील्ड कौन सी है, अगर ये फील्ड रियल नंबर है तो इसका तो बार का कोई इश्यू नहीं है, तो अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 अल्फा 1 स्क्वायर हो जाएगा. लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इट्स कॉन्जुगेट इज इट्स मैग्नीट्यूड स्क्वायर, मॉड्यूलस स्क्वायर. तो ये हो जाएगा लाइक दिस. और आप सब लोग जानते हो कि स्क्वायर इज ऑलवेज व्हाट? पॉजिटिव, और इसलिए ये पॉजिटिव है, तो इसका आंसर जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा. दूसरी बात इसमें ये, अगर आप इसको u को 0 मान लेते हो तो ऑब्वियसली अल्फा 1 स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा 2 स्क्वायर, ये जो आपका आंसर आया था कुछ देर पहले, वो इक्वल टू 0 हो जाएगा. अब 0 होने के लिए एक चीज पॉजिटिव एक चीज नेगेटिव होनी चाहिए ताकि कैंसिल हो जाए,
लेकिन यहाँ कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं। अब सारे पॉजिटिव का एडिशन 0 तभी आएगा जब सारे 0 रहेंगे, तो इसलिए आप इसमें अल्फा 1 इक्वल टू 0, अल्फा 2 इक्वल टू 0, इन दिस फैशन यू कैन राइट अल्फा n इक्वल टू 0। इसलिए आपका जो u हो जाएगा वो अल्फा 1 की जगह 0, अल्फा 2 की जगह 0 रखेंगे, तो आपका ये जो u हो जाएगा वो 0 वेक्टर हो जाएगा, u इक्वल टू 0 वेक्टर। तो सेकंड कंडीशन भी यहाँ क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरी कंडीशन को चेक करना है। कैसे करेंगे तीसरी कंडीशन, दैट इज टू प्रूव दैट थर्ड कंडीशन इनर प्रोडक्ट की क्या होती है पता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v कॉमा w इज इक्वल टू अल्फा u कॉमा w प्लस बीटा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ v एंड w। तो यहाँ पर w एक नया वेक्टर लेना पड़ेगा आपको, जो हम लेंगे गामा 1 गामा 2 गामा n, उसके एलिमेंट। तो हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से देखिए ये फर्स्ट वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u एंड v, तो इसका एलिमेंट जो आएगा वो आएगा अल्फा अल्फा 1 प्लस बीटा बीटा 1 पहला। तो अल्फा अल्फा 1 प्लस बीटा बीटा 1 ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट। अब इसका पहला कंपोनेंट हम लेते हैं गामा 1, उसका कॉन्जुगेट, ठीक है। फिर दूसरा कंपोनेंट अल्फा अल्फा 2 प्लस बीटा बीटा 2, इसका दूसरा कंपोनेंट, और इनटू इसका गामा 2 बार, और इन दिस वे आखिरी का जो है वो आएगा अल्फा अल्फा n प्लस बीटा बीटा n, और ये आएगा इनटू गामा n बार, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर जो भी रहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसमें हम अप्लाई करेंगे, ये अंदर जाएगा तो हमें मिलेगा अल्फा अल्फा 1 गामा 1 बार प्लस बीटा बीटा 1 गामा 1 बार, ये दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसका आएगा अल्फा अल्फा 2 गामा 2 बार प्लस बीटा बीटा 2 गामा 2 बार, एंड इन दिस फैशन आप लास्ट एलिमेंट लिखेंगे प्लस अल्फा n गामा n बार प्लस बीटा बीटा n गामा n बार, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये अल्फा मल्टीप्लायर, ये अल्फा मल्टीप्लायर, ये जितने भी अल्फा के मल्टीप्लायर्स है उनको एक साथ लेते हैं और अल्फा कॉमन लेते हैं। तो यहाँ आएगा अल्फा 1 गामा 1 बार प्लस अल्फा 2 गामा 2 बार, और आखिरी आएगा अल्फा n गामा n बार। और बीटा वाले जो मल्टीप्लायर है उसको हम यहाँ पर लेते हैं एक साथ और बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बीटा 1 गामा 1 बार प्लस बीटा 2 गामा 2 बार, लाइक दिस बीटा n गामा n बार, ठीक है। अब आप देखिए एज पर द डेफिनेशन उन्होंने जो दिया है कि फर्स्ट वेक्टर से पहला कंपोनेंट आएगा और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट का बार लिया जाएगा, मतलब ये u का कंपोनेंट है और ये w का है, तो ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी प्रोडक्ट ऑफ u एंड w। तो इसलिए हम यहाँ लिखते हैं u एंड w का प्रोडक्ट प्लस बीटा, यहाँ ये फर्स्ट कंपोनेंट v से आया है तो v कॉमा ये सेकंड वाला जो है w से आया है, तो ये है आपका राइट हैंड साइड। तो दो तीनों कंडीशंस को फुलफिल किया उस प्रोडक्ट ने, इसलिए जो प्रोडक्ट आपको दिया गया था वो इनर प्रोडक्ट डिफाइन होता है और इसीलिए वो वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा। अब बढ़ते हैं आगे अगली डेफिनेशन। ये देखिए अगर आपको प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन किया है तो क्या आप वो तीनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो आप ये करके देखिए कि आपको प्रूव करना है u कॉमा v इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ v कॉमा u। तो पहले लेफ्ट साइड निकालिए अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, फिर राइट साइड को सॉल्व कीजिए और लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल बता दीजिए। यहाँ पर आप किसी एक वेक्टर का प्रोडक्ट उसी के साथ लेंगे और उसको बताएंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यहाँ पर आप एक तीसरा वेक्टर आपको लेना होगा ये w, और आपको प्रूव करना है अल्फा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड w प्लस बीटा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ v एंड w, जो मैंने पिछले एग्जांपल में किया था उसी प्रकार आप इसमें भी कर सकते हो। तो ये आप कीजिए। अगला जो एग्जांपल है वो है
देखिए ये वेक्टर स्पेस में V इज द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 and if you take two elements from the V and define the product like this then show that it is inner product. तो इसलिए मैंने बोला कि इनर प्रोडक्ट इज द जनरल थिंग, जैसा वेक्टर का टाइप है उस हिसाब से आपको उसको डिफाइन करना होता है और वो डिफाइन करने के बाद आपको चेक भी करना होता है कि क्या वो इनर प्रोडक्ट के 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तभी आप उस प्रोडक्ट को इनर प्रोडक्ट कॉल करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको पहली कंडीशन डिफाइन करनी होगी जो कि एफ जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जी एफ विथ कॉन्जुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड तो यही आएगा जो आपको दिया है और इस प्रकार से आपको प्रोडक्ट लेना है। तो मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए इंटीग्रेशन 0 to 1 लेना है, फर्स्ट वेक्टर जो भी रहेगा उसको एज इट इज लेना है। तो यहाँ फर्स्ट वेक्टर है आपका जी ऑफ टी, मैं आरएचएस सॉल्व कर रहा हूँ, इनटू सेकंड वेक्टर का कॉन्जुगेट लेना है और फिर dt लेना है। ठीक है, अब ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ये आपको बताना है। तो ये आपका ये जो बार है यहाँ पर मैंने देना है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1। ये जो बार है डिस्ट्रीब्यूट होगा फैक्टर्स के ऊपर, तो जी ऑफ टी का भी बार लेंगे आप और इधर एफ ऑफ टी का ऑलरेडी बार था और एक बार इसकी वजह से एक बार लेना होगा और ये डी टी। और कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज द ओरिजिनल एलिमेंट, इसलिए आपको मिलेगा 0 to 1 जी ऑफ टी बार और ये बन जाएगा एफ ऑफ टी। तो इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन कम्यूटेटिव लॉ यूज करके इसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में। तो ये सेम टू सेम ऐसा दिखेगा जो कि है इन प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी, मतलब लेफ्ट साइड। सो ये एलएचएस के हिसाब से इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे हो गई। अब दूसरी कंडीशन को प्रूव करने के लिए आपको ये प्रूव करना होगा, एफ का इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो व्हाट इज इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ टी एंड एफ टी इज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इंटीग्रेशन 0 to 1 फर्स्ट वेक्टर एज इट इज लिखना है और सेकंड वेक्टर का कॉन्जुगेट लेना है। अब ये दोनों अगर रियल वैल्यूड फंक्शंस है तो ये बार का कोई रोल नहीं है, कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर इज अगेन सेम रियल नंबर। लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है तो ये इसका कॉन्जुगेट रहेगा। तो दोनों केस में कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल एलिमेंट इज इट्स अ मॉड्यूलस, तो ये ऐसा हो जाएगा। और रीमान इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर इंटीग्रैंड ऑफ द इंटीग्रल अगर पॉजिटिव है तो उसका इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव आएगा। अब ये मॉड का स्क्वायर है, मतलब ये इंटीग्रैंड जिसका हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव है। तो सिंस द इंटीग्रैंड जो भी है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर द इंटीग्रेशन ऑफ दैट इंटीग्रैंड according to Riemann integration property is also greater than or equal to 0। और ये जो है ये इनर प्रोडक्ट है f का f के साथ, therefore ये greater than or equal to 0 हो गया। तो इनर प्रोडक्ट की सेकंड कंडीशन इस प्रोडक्ट ने भी सेटिस्फाई की है। अब बची तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में हमको प्रूव करना होगा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा f प्लस बीटा g और एक h दूसरा फंक्शन ले लेते हैं। इसको आपको प्रूव करना होगा अल्फा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ f एंड h प्लस बीटा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ g एंड h। तो हम राइट हैंड साइड से शुरू कर देते हैं और लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंचते हैं। तो ये अल्फा और इसका डेफिनेशन आएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 फर्स्ट वेक्टर एज इट इज, दूसरे का कॉन्जुगेट dt। बीटा इसकी डेफिनेशन आएगी इंटीग्रेशन 0 to 1 फर्स्ट वेक्टर एज इट इज और दूसरे का कॉन्जुगेट। रीमान इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज के हिसाब से इंटीग्रेशन सेम है तो आप एक बार ही इंटीग्रेशन लिख सकते हो 0 to 1 और अंदर जो मिलेगा वो अल्फा एफ ऑफ टी और एच ऑफ टी का बार प्लस बीटा जी ऑफ टी एंड h ऑफ t का बार एंड dt। अब इसमें h t बार भी हम कॉमन ले सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। तो यहाँ अल्फा f ऑफ t प्लस बीटा g ऑफ t
और फिर एच ऑफ टी का बार यहाँ पे हमने ले लिया। तो अब देखिए ये जो है ये एक वेक्टर का लीनियर, दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स अगेन क्या रहता है, वेक्टर। तो ये एक वेक्टर है और ये दूसरा है और उसका बार भी है। तो बाय दिस डेफिनेशन इट इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फा एफ प्लस बीटा जी इनर प्रोडक्ट एच के साथ। तो ये है आपका LHS। तो आपका ये तीसरा प्रॉपर्टी भी यहाँ फुलफिल हो गया। इसलिए ये जो भी डिफाइन किया गया था इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी इनर प्रोडक्ट बनेगा उस वेक्टर स्पेस के लिए। अब हम और भी इसके थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।